welcome to yet another video of Learning Science with Srishti. So in this video, we are going to start with the states of matter. In our previous video, we have already completed the definition of matter, the constituents of matter, physical nature of matter, as well as the characteristics or the properties of matter. So without any further delay, let's get started with this video. So, the states of matter has been classified into 5 parts with the help of our modern day scientists, that is the solid, liquid and gases. Plasma and Bose-Einstein condensate are the newly discovered states of matter. So, now we are going to study about these states of matter in detail. So, first of all, let us begin with the solid state. So how can we say that a substance or the object is solid, liquid or gases? हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कोई जो एक ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैसेस है? वी से दैट ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज़, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, सबकी अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको देख के हम बोलते हैं कि अच्छा दैट ऑब्जेक्ट इज सॉलिड, दैट ऑब्जेक्ट इज लिक्विड एंड दैट ऑब्जेक्ट इज गैस. सो नाउ वी आर गोना स्टडी द properties of a solid object, that what properties that the solid object has. Okay, so they have a specific shape, they have distinct boundaries and they have a volume. So what does these lines mean? इन लाइन्स का मतलब क्या है? सो वेन एवर वी सी अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, कभी भी अगर हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट देखते हैं, वेदर इट इज़ अ चेयर, टेबल और एनी अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट, देन ऑल दीज हैव अ स्पेसिफिक शेप एंड वॉल्यूम. सबका एक स्पेसिफिक शेप होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है. क्यों होता है? बिकॉज जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एक सॉलिड सब्सटेंस में, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में, ऑल दोज पार्टिकल आर वेरी मच कॉम्पैक्टली एंड टाइटली पैक्ड. उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट और टाइट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Okay, so they have a specific shape and volume. And now what does this line means? That they have distinct boundaries. Distinct boundaries का मतलब ये है कि it cannot take the shape of the container in which it is placed, because इसका खुद का एक definite shape है, definite volume है, so it will not take the शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड. बट अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो हम अगर किसी भी वाटर को किसी भी ऑब्जेक्ट में डालते हैं, बॉटल में डालते हैं, तो वो बॉटल का शेप लेता है. अगर हम उसे किसी मग में डालते हैं, टेक्स द शेप ऑफ मग. सो वाटर जो है इट डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, बट द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. दे कैन नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड. There is less kinetic energy among the particle in solid and they are generally in an order. So अगर हम एक solid के structure की बात करें तो suppose this is a cube, sorry this is a rectangle, तो इसके बीच के suppose these are the particles. So these are so closely packed, they are so closely packed that they do not have any spaces in between them. इनके बीच कोई भी space नहीं होता है. So obviously अगर इनके बीच में कोई भी space नहीं है, so how will they move? हाउ विल दिस पार्टिकल मूव? इनके बीच में मूवमेंट कैसे होगा? अगर मूवमेंट होगा ही नहीं, सो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली विल बी लेस. काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस. Why? Because there is no movement between these particles. And why is there no movement? Because these particles have no spaces in between them. They are so strongly held with this intermolecular force of attraction that there is no movement in between these particles. So obviously there is less kinetic energy among the particle in solid and they are generally in an order. Here you can see in this diagram clearly that they are arranged in a complete order and they are very compactly packed. Thus they possess a fixed shape and cannot be compressed. इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो solid के जो shape होता है वो बहुत ही ज़्यादा fixed होता है और उसका fixed volume भी होता है and it cannot be compressed. Can we compress a solid? क्या हम किसी solid को compress कर सकते हैं? Take a iron nail and try to compress it. Is it compressed? No, we cannot compress a iron nail. Why we cannot compress iron nail? Because their particles are so compactly packed that there is no spaces between these particles for compression. Okay, now let us move on to the next point. What does this say? It says that the force of attraction is maximum among the particles and there is not much spaces between this particle. And this line is very much evident from this diagram. ये clearly दिख रहा है इस diagram में कि ये जो particle है वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा closely attached हैं. तो obviously how are these particles closely attached? क्लोजली अटैच्ड क्यों है? क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तभी तो ये अटैच्ड है. अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं तो हाउ विल दे बी अटैच्ड? दे विल नॉट बी अटैच्ड लाइक दिस. ओके, so obviously they have a maximum intermolecular force of attraction and there is not much spaces between these particles. So this was all the properties of solid state, that is they have a definite shape and volume, they have distinct boundaries, there is less kinetic energy and the force of attraction is maximum. Okay,
Now let us move on to the liquid state. सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ तो हमने देख ली कि सॉलिड वो सब्सटेंस है जिसकी जो शेप है, वॉल्यूम है, वो डिस्टिंक्ट रहेगा, डेफिनेट रहेगा, उसका शेप जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट, हार्ड और टफ रहता है. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड. लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है, हम कैसे बोलते हैं कि वाटर इज़ लिक्विड, हाउ वी से दैट वाटर इज़ लिक्विड. हम लोग वाटर को लिक्विड इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट उसका शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होता है, उसका शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है. सो लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. सो अगर हम 1 लीटर वाटर लेते हैं और उसको हम लोग किसी अनदर कंटेनर में डालते हैं, ओके, सो उसका जो वॉल्यूम है वो तो वही रहेगा, दैट वॉल्यूम विल बी स्टिल द 1 लीटर बट द शेप विल चेंज. कंटेनर का जो शेप होगा उसके अकॉर्डिंग जो वाटर का शेप है वो चेंज हो जाएगा. सो लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड पार्टिकल इज लेस देन द सॉलिड्स. सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड पार्टिकल्स में वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, लेस होता है. Therefore, there is a space between the particles of liquid and they can flow easily. They cannot be compressed. That is why they are also called fluids. देखो, जो force of attraction होता है liquids में वो solid के comparison में कम होता है. अगर मैं अभी आपके लिए एक डायग्राम बनाती हूँ liquid का, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा. तो सपोज दिस इज़ अ कंटेनर एंड इसमें कोई लिक्विड पार्टिकल है, ठीक है, लिक्विड पार्टिकल है. तो ये पार्टिकल जो है इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑब्वियसली इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द सॉलिड पार्टिकल. डायग्राम से ही दिख रहा है ना कि उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. दे आर नॉट इवन अरेंज्ड इन ऑर्डर एंड एक दूसरे से इतने ज़्यादा अटैच नहीं है. इसका मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है इन कंपेरिजन टू द सॉलिड्स. ओके, सो इसी वजह से क्या बोलते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स इज लेस देन द सॉलिड्स एंड देयरफॉर देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड. यू कैन से दैट इसके बीच में क्या है, स्पेसेस हैं. इनके बीच में क्या है, स्पेसेस है. ये पार्टिकल्स जो हैं आपको नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे. यू कैन ओनली सी द पार्टिकल्स ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, ये नेकेड आइज से दिख नहीं सकते हैं बट वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेसेस होता है एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्या है वो कम है एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स. ओके, सो द लिक्विड्स ऑल्सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. कैन यू कंप्रेस वाटर. हम क्या वाटर को कंप्रेस कर सकते हैं, हम क्या ऑयल को कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. ऑब्वियसली वी कैन नॉट कंप्रेस वाटर एंड ऑयल. सो दीज कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एज वेल एंड दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड्स. हम लोग इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स भी बोलते हैं बिकॉज हम लोग इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. Okay, so arrangement of particle in liquid are not fixed. They take the shape of container in which we put them because the particle of liquids have a very high kinetic energy. They always keep on moving. इस लाइन को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं. ये क्या बोल रहा है कि जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का इसमें फिक्स्ड नहीं रहता है. अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो अरेंजमेंट था सॉलिड में, जो पार्टिकल का अरेंजमेंट था वो क्या था, ऑर्डर में था, एक फिक्स्ड ऑर्डर में था, प्रॉपरली अरेंज था. और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी, बहुत ज़्यादा हाई थी उनके बीच में. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द लिक्विड, सो इसके बीच का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं है, एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. ओके, सो दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. अगर हम लोग इसे ट्रायंगल कंटेनर पे डालेंगे इट विल टेक द शेप ऑफ अ ट्रायंगल. अगर हम लोग को इसे यू शेप कंटेनर में डालेंगे देन इट विल टेक द शेप of that container. अगर हम उसको V shape में डालेंगे it will take the shape of that container. So it does not have a fixed shape. It just take the shape of the container in which it is placed. Okay. एंड ऑल्सो क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस है, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम क्यों था, बिकॉज उसके पार्टिकल के बीच में बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं थे, बिकॉज उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था. बट यहाँ पे तो पार्टिकल के बीच में स्पेसेस हैं. You can see that the spaces is present between these particles. So अगर spaces present है so obviously these particles can move ना, these particles can move, so their kinetic energy is very high, so they always keep on moving. So this was the properties of the liquid state. And what are the properties, that they do not have a fixed volume, they do not have a fixed shape, their force of attraction is less as compared to the solid and they have a high kinetic energy as compared to the solid. इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट फिक्स्ड नहीं होता है जबकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द गैसियस स्टेट. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसियस स्टेट. आखिर हम कैसे बोलते हैं कि जो
ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एयर है, वो क्या है? गैस है. हाउ डू वी से दैट? बिकॉज दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. क्या हम एयर का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं? कैन वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर? क्या हम बोल सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे 1 किलो एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 किलो एयर प्रेजेंट है? वी कैन नॉट से दैट ना. So they do not have a fixed volume and they do not have a fixed shape as well. एयर का भी शेप जो होता है फिक्स्ड नहीं होता है. वी कैन नॉट से कि एयर जो है वो सर्कुलर शेप का है और इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. वी कैन नॉट से दैट because they do not have a fixed volume and they do not have a fixed shape. Particle of gases have least or almost no force of attraction between them and hence have large number of spaces between them and can freely move. So अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएं सिंपल. Okay, so let us take this container and इसमें suppose oxygen gas है. So these are the particles of this oxygen gas. They are freely moving in the air. आप देख सकते हो इसमें कितना ज़्यादा intermolecular force of attraction है. दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं. दे आर नॉट एट ऑल अटैच्ड विथ ईच अदर. इसका मतलब इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो थोड़ा सा है और या तो बिल्कुल क्या है? नेग्लेजिबल है. देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ईदर प्रेजेंट वेरी इन लेस अमाउंट or it is negligible. Okay, they have the least or almost no force of attraction between them and they have large number of spaces between them and can freely move. Obviously अगर इनके बीच का जो spaces है वो बहुत ज़्यादा है so they can freely move and they can freely move. तो इसका मतलब क्या है कि इनका kinetic energy क्या होगा? मैक्सिमम होगा. देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम. अगर आप एक डायग्राम बनाओगे ना सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसे ही समझ में आ जाएगी. अगर आप सॉलिड का डायग्राम देखोगे तो यू कैन सी दैट द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रांगली पैक्ड, दैट देयर इज high intermolecular force of attraction between them. Their kinetic energy is very less because there are no spaces between the particles of solid. अगर हम liquid की बात करें तो solid के comparison में उसका intermolecular force of attraction क्या होता है? कम होता है. But still उसका intermolecular force of attraction होता है but still it is less than the solids. ठीक है. और उसमें भी क्या होता है? kinetic energy ज़्यादा होता है as compared to the solids. But यहाँ पे क्या है कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज यू कैन सी दिस पार्टिकल दैट हाउ मच स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन दिस पार्टिकल एंड दे ऑल्सो टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. ऑल्सो वी कैन ईजिली कंप्रेस दिस. अगर हम चाहें तो ऑक्सीजन को हम आराम से कंप्रेस करके एक स्मॉल कंटेनर में रख सकते हैं बिकॉज इनका तो ना फिक्स्ड वॉल्यूम है ना फिक्स शेप है. तो हम कितना भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कंप्रेस करके वी कैन कीप इट इन अ स्मॉल कंटेनर. So these were the properties of the gaseous state. What are the properties? First of all, they do not have a fixed volume. They do not have a fixed shape. The particle of gases have least or almost no force of attraction between them and hence have large number of space between them and can freely move. It was evident from this diagram कि इनके बीच तो space है ही नहीं बिल्कुल, तो they can freely move and they have a maximum kinetic energy. Also, they can be easily compressed and put into a small container unlike the solids and liquids. Solids and liquids को हम लोग किसी भी कंटेनर में कंप्रेस करके नहीं रख सकते हैं. क्यों कंप्रेस करके नहीं रख सकते हैं? बिकॉज उनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है. हम 2 लीटर वाटर को उससे 2 लीटर से कम वाले बॉटल में नहीं रख सकते हैं, उसमें वो अटेगा ही नहीं बिकॉज इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. बट हम लोग गैस को, ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस को भी एक स्मॉल कंटेनर में रख सकते हैं बाय कंप्रेसिंग देम. ओके, सो दे कैन बी इजिली कंप्रेस्ड एंड पुट इनटू अ स्मॉल कंटेनर अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. Therefore, particles move around freely at high speed and there is no fixed shape of the gases. You can see here in this diagram very clearly कि इनके बीच का जो spaces है वो बहुत ज़्यादा है. Space ज़्यादा है, obviously kinetic energy ज़्यादा होगा because वो बहुत ही ज़्यादा freely move कर सकते हैं. उनके बीच का intermolecular force of attraction भी क्या है? या तो कम होता है और या तो बिल्कुल ही negligible होता है, present ही नहीं होता है. Okay, so these were all the properties of the solid, liquid and gases. Now let us see the differences between these states. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड्स हैव अ डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम. जैसा मैंने बताया कि सॉलिड का जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेफिनेट होता है. अगर हम एक सपोज क्यूब का एग्जाम्पल लेते हैं सो उसमें भी क्या होता है कि शेप एंड वॉल्यूम जो है उसका वो बहुत ही ज़्यादा डेफिनेट होता है. उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. वी कैन ओनली चेंज इट बाय अप्लाइंग फोर्स. ओके, नाउ लिक्विड की अगर हम बात करें तो उसका इनडेफिनेट शेप होता है बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है. अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड बट उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड ही रहता है. अगर हम 1 लीटर पानी लेंगे तो 1 लीटर पानी ही रहेगा, वो कम नहीं हो सकता है. ओके, एंड गैसेस का जो शेप और वॉल्यूम है दोनों इनडेफिनेट होता है.
होता है, ठीक है। एयर को हम लोग कंप्रेस करके किसी स्मॉल कंटेनर में आराम से प्लेस कर सकते हैं, उसका कोई शेप कोई वॉल्यूम नहीं होता है। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन सॉलिड्स, ये हमको इस डायग्राम से दिख सकता है कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, बिकॉज ऑल दिस पार्टिकल आर क्लोजली अटैच विद ईच अदर, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है। इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू द सॉलिड, एंड इनके बीच का जो है वो बिल्कुल ही कम है ही नहीं, वी कैन से, ओके। Solid cannot be compressed. We can easily see from this diagram. It cannot be compressed because it has very high intermolecular force of attraction. This cannot also be compressed because they have a definite volume. इनका volume जो है वो change नहीं होता है. They can be compressed because they do not have definite volume. They do not have definite shape. ठीक है. Now the solid have minimum kinetic energy. इनका kinetic energy क्या होता है? वो minimum होता है. They have minimum kinetic energy because there is no space between their particle. उनके particle के बीच में space ही नहीं है. So how will they move? If they will not move, ultimately the kinetic energy will be less. इनके बीच का जो kinetic energy होता है, it is more as compared to the solids. Why? Because their particle have some spaces in between them. इनके बीच में कुछ spaces तो हैं, कुछ spaces हैं, तो obviously क्या होगा? Kinetic energy होगा, क्योंकि इनके बीच में movement हो रहा है. इनमें सबसे ज़्यादा होता है, क्यों होता है? Because they have very much spaces in between them. Okay. नाउ पार्टिकल कैन नॉट मूव एंड ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशन. तो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल मूव नहीं कर पाता है, अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करता है. ये तो डायग्राम से दिख ही रहा है कि अगर इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, इतने कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है ये, तो ये मूव करेंगे कैसे? तो ये अपने ही स्पेस पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, ये एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते हैं, इनके बीच में स्लाइट मूवमेंट होती है, एंड इसमें तो पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव करते हैं. दे हैव हाईएस्ट डेंसिटी. हाईएस्ट डेंसिटी कैसे डेंसिटी हाईएस्ट होता है? वी नो दैट डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. इनका मास भी डेफिनेट है, वॉल्यूम भी डेफिनेट है ना. इनका शेप भी डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, इनका मास तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली देयर डेंसिटी विल बी ऑल्सो हाई. इन लोगों का डेंसिटी जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड. क्यों कम होता है? बिकॉज इसका वॉल्यूम जो है वो, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, बट इसका शेप क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता है. ऑब्वियसली द डेंसिटी इज लोअर देन द सॉलिड, एंड दे हैव लोएस्ट डेंसिटी बिकॉज जो गैसेस का जो वॉल्यूम है वो कम होता है, गैसेस का जो मास है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स. सो हाईएस्ट डेंसिटी इन सॉलिड्स, लोअर, स्लाइट लोअर इन लिक्विड्स, एंड द लोएस्ट इन गैसेस. नाउ सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो. अब ऑब्वियसली यार क्यूब तो फ्लो नहीं करेगा ना, चेयर टेबल तो फ्लो नहीं करेंगे ना. दे कैन नॉट फ्लो ऑब्वियसली, एंड लिक्विड्स कैन फ्लो. वी नो दैट लिक्विड्स कैन फ्लो, वाटर कैन फ्लो, ऑयल कैन फ्लो, एयर फ्लोज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे फ्लो कर सकते हैं, बट द सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द other two states which has been discovered by our scientists, that is the plasma and the Bose-Einstein condensate. So what does the plasma state? Plasma is the state of matter in which the particles are super excited and super energetic and are in the form of ionized gases. So plasma वो state of matter है जिसके बीच के जो particles हैं वो super excited रहते हैं, यानी कि they are in the motion and they are in the form of ionized gases, यानी कि ionized gases के form में इसके particles जो हैं वो present होते हैं. किसके particles present होते हैं? Plasma के particles. So what are the example of the plasma? These are the example fluorescent tubes and the neon bulb. ठीक है, you can see here in this diagram that these are the ionized gases which are present in the plasma state of matter. Plasma state of matter में क्या present होता है? Ionized gases are present in the plasma state of matter. Okay, so now फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और नियॉन बल्ब्स में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं? तो नियॉन बल्ब में होता है नियॉन गैस एंड हीलियम गैस, ठीक है. एंड जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होता है इस ट्यूब से, इस बल्ब से, तो क्या होता है कि उनके बीच का जो गैसेज है, ये गैसेज होते हैं, जैसे कि हीलियम एंड नियॉन प्रेजेंट होता है. नियॉन बल्ब में क्या प्रेजेंट होता है? helium and neon are present. So these gases get ionized. ये ionized हो जाते हैं and plasma create करते हैं उनके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ultimately these tubes or these bulbs glow. So this happens in plasma containing bulbs or tubes. Now Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate is the fifth matter discovered by the Albert Einstein. Who discovered this matter?
Albert Einstein discovered this matter on the basis of studies conducted by an Indian scientist that is Satyendra Nath Bose. इसी वजह से इसका नेम क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बिकॉज किसका स्टडी था, बोस का स्टडी था, एंड हु डिस्कवर्ड इट, आइंस्टीन डिस्कवर्ड इट, सो दैट इज व्हाई द नेम इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. इट इज फॉर्म बाय कंडेंसिंग गैसेज ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटीज टू मच लोअर टेम्परेचर. ये कंडेंसिंग गैसेस के थ्रू फॉर्म होता है. ठीक है, किसके थ्रू फॉर्म होता है, कंडेंसिंग गैसेस के थ्रू फॉर्म होता है बहुत ही ज़्यादा लो डेंसिटी में एंड लो टेम्परेचर में. यानी कि ये वो स्टेट ऑफ मैटर है विच इज़ फॉर्म बाय द कंडेंसिंग गैसेस एट वेरी लो डेंसिटी एंड लो टेम्परेचर. ठीक है, इनका डेंसिटी एंड टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लो होता है. नाउ आई एम गोना आस्क यू गाइज सम क्वेश्चंस. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ रबर बैंड, sponge and iron nail. So my question is, are these all solids? क्या ये सब solid है? So what you guys will answer? Obviously you guys will answer that all of these substances are solids. They are all solids. And why are these solids? Because they have a fixed shape. दे हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. रबर बैंड जो है वो अपना शेप, आप लोग बोलोगे कि जो रबर बैंड है वो तो अपना शेप चेंज करता है. हाँ, चेंज तो करेगा शेप अपना. क्यों चेंज करेगा, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे देन इट विल चेंज इट्स शेप. एंड स्पॉन्ज विल ऑल्सो चेंज इट्स शेप इफ यू विल अप्लाई force on it, but it has a fixed shape and volume, so they are all solids. And also if we will see the example of sugar or salt, अगर हम शुगर और सॉल्ट को किसी कंटेनर में रखते हैं, किचन में आपने देखा ही होगा, हम जो कंटेनर में शुगर एंड सॉल्ट को रखते हैं तो आपको लगता होगा कि शुगर एंड सॉल्ट ने ना कंटेनर का शेप ले लिया है, बट ऐसा नहीं है. अगर हम ईच ग्रेन को देखें, यानी कि एक एक पार्टिकल को देखें, शुगर और सॉल्ट के एक छोटा सा ग्रेन उठा के देखें, सो obviously that grain will have its own shape and size. उसका खुद का शेप होता है, खुद का वॉल्यूम होता है, खुद का फिक्स्ड मास होता है. ओके, so that also is a solid. Now my another question for you guys is that can other matter diffuse in solids? Can other matter diffuse in solids? क्या कोई और मैटर लिक्विड्स, क्या कोई और मैटर लिक्विड में डिफ्यूज कर सकता है? कैन अदर मैटर डिफ्यूज इन द लिक्विड? अदर मैटर, यहाँ अदर मैटर से मेरा मतलब है सॉलिड या फिर कोई दूसरा लिक्विड या फिर कोई गैस. क्या वो डिफ्यूज कर सकता है, यानी कि एंटर कर सकता है लिक्विड में? सो येस, द आंसर विल बी येस. व्हाई द आंसर विल बी येस? बिकॉज देर इज स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, सो पार्टिकल ऑफ अदर मैटर कैन स्लिप इन टू दो स्पेसेस. हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम क्लियरली कि ये एक लिक्विड है, सपोज वाटर है, इसकी पार्टिकल जो है इनके बीच में क्या है, स्पेसेस हैं. तो ऑब्वियसली इन स्पेसेस के बीच जो है वो अदर मैटर के पार्टिकल भी आ सकते हैं. हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं एक सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन का, सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन कैसे बनता है? ऑब्वियसली इट इज मेड बाय मिक्सिंग द शुगर इनटू द वाटर या फिर मिक्सिंग द सॉल्ट इनटू द वाटर. उसको हम लोग मिक्स करके बनाते हैं. तो उसमें क्या होता है कि जो सपोज हम इसमें शुगर डाला तो ये आ गया शुगर का पार्टिकल, ये आके जो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में क्या आ जाते हैं, स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. सो ऑब्वियसली इट कैन डिफ्यूज. इट मीन्स द अदर मैटर कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड्स. Okay, so this was all about today's lecture, guys. I hope you guys understood this really nicely, and I have tried to make this lecture interesting for you guys. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड ऑल्सो अगर आपको एक प्रॉपर ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए, प्राइवेट वाला, जिसमें आपको प्रॉपर हैंड रिटन स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर, क्विजेस, MCQs, टेस्ट सब होगा हर चैप्टर के बाद. सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड ऑल्सो अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है जिसमें मैंने मैटर का डेफिनेशन, उसके प्रॉपर्टीज़ बताए हैं, सो आई विल ऐड दैट लिंक in the description box. Go and watch it out for more clarity. Okay, bye bye, see you in the next video.